Hi, this is my first video, and in this video, I'll be talking about revenue analysis. And in future, I'll be uploading more finance related topics on this channel. So if you want to stay updated, you can subscribe it. So without wasting time, let's start the video. So we'll be doing revenue analysis of company named TCS. So for that, we will need a revenue number of that company. So we'll be going to Screener and searching TCS. And we'll go down here. So ये है annual report of the company of 2025. We will search total assets. Now this will lead us to the balance sheet of the company. So this is consolidated balance sheet. We'll need this number. Revenue from operations. So it is here 255324 for 2025. And for 2024, it's 240,893. One thing keep in mind, there is total income, then comes revenue from operations. But when we are forecasting revenue of a company, we will only forecast revenue from operations because other income is not related to the operating part of the company. When we forecast something, we only forecast only operating part of the company. As because non-operating part we can't forecast it. Then for forecasting revenues, we will also need revenue ka number according to geography. For this, we will search this number. It will directly lead us to note number 12. See here. So this is note number 12. सो यहाँ पर तो इनका बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है इन्होंने अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी. वी विल गो डाउन. सी तो यहाँ पर इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है. लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल रेवेन्यू इज एज फॉलोज. अमेरिकाज, यूरोप, इंडिया एंड अदर्स. इन्होंने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल नॉन करंट एसेट का भी बाइफर्केशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी. यहाँ पर इन्होंने 1 and 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका नोट भी दिया हुआ है. लाइक अमेरिका में इंक्लूड्स रेवेन्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 113,559. मतलब ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसमें जो यूएसए का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है. देन यूरोप में इन्होंने अलग से यूके का दिया हुआ है बिकॉज इट मेजरली कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली 42,000 समथिंग. So we will need these numbers. Let's copy it. Okay. So here I just copy pasted the numbers, North America, India and others. So these are the revenue actual numbers and I have just taken the percentage part. Like North America is how much of the total. So it is 53%. And for the March 2025 also. Now before that we will also need the industry ka growth rate. As TCS is in the IT services company. So we will need IT industry ka growth rate and market size. So you will see I have already searched global IT industry services industry market size. So यहाँ पर हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं. Now we will go through each reports. Let's drag it here. Yeah. Now coming here, we will see the global IT का market size was
1142, मतलब $1.11 ट्रिलियन इन 2021। तो ये थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, बट अगर हमें लाइक कोई और रिपोर्ट्स नहीं मिलती है तो हम ये भी ले सकते हैं, बट फॉर नाउ हमारे पास अदर रिपोर्ट्स भी हैं। लाइक दिस इज रिपोर्ट फ्रॉम ग्रैंड व्यू रिसर्च। इन्होंने बताया हुआ कि ग्लोबल आईटी सर्विसेज का मार्केट साइज वाज $1.5 ट्रिलियन इन 2024 और प्रोजेक्टेड टू रीच है $2.59 ट्रिलियन बाय 2030, जो CAGR आ रहा है 9.4%। ओके, देन इन्होंने एक है मॉर्डोर इंटेलिजेंस। इन्होंने मार्केट साइज बताया 2025 में $1.5 ट्रिलियन, विच इज़ वेरी रिलेटेड, मतलब क्लोज टू ग्रैंड व्यू रिसर्च का नंबर्स। एंड इनका CAGR आ रहा है 9.26, विच इज़ ऑल्सो क्लोज टू। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में तो अभी तक बहुत सिमिलैरिटी है, लाइक क्लोज नंबर्स उन्होंने बताया। नाउ दैट्स अ गुड थिंग। देन द ग्लोबल IT मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $1.2 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू IMARC इन 2024। एंड इन्होंने एस्टिमेट करा है $2.28 ट्रिलियन बाई 2030, जिससे हमारा CAGR आएगा 7.26%। सो इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू दैट, बट अगेन वी विल गेट other things like this is statista, sorry, it is also a good site। तो इन्होंने बताया है कि IT सर्विसेज इज मार्केट is poised for a significant revenue size with projected revenue of $1.5 ट्रिलियन in 2025। एंड इन्होंने एनुअल ग्रोथ रेट बताया था, या 4.05%, रिजल्टिंग इन मार्केट वॉल्यूम ऑफ $1.83 ट्रिलियन बाई 2030। तो यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम लिखा है, इससे बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, बट इन रियलिटी दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केट साइज, मतलब मार्केट वैल्यू, इट्स नॉट वॉल्यूम। सो लाइक इसका ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा ही कम आ रहा है, बट अगर हम इन सब का देखें तो इन्होंने 7.26% कहा था, इन्होंने 9.26, इन्होंने कहा था 9.4। तो वी कैन टेक एनी नंबर, बट हमें ऐसा नंबर लेना है जो बहुत सारी रिपोर्ट्स मतलब बता रही हैं एंड क्लोजर टू दैट ऑफ, लाइक स्टैटिस्टा तो बहुत ही कम बता रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट 4.05%। नाउ ये डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, कि उन्होंने कुछ चीज़ें मार्केट में मार्केट साइज में कंसिडर ना करी हों, उन्होंने कुछ अलग चीज़ें, तो हर किसी का अपना अपना पैरामीटर होता है। सो वी कांट डायरेक्टली रिजेक्ट एनीथिंग, बट हम लेंगे कोई ऐसा नंबर जो क्लोजर टू अदर रिपोर्ट्स हो। अगर हमारे पास कोई और रिपोर्ट्स नहीं होती तो स्टैटिस्टा इज़ अ वेरी गुड साइट, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजन वाइज भी डेटा मिल जाता है। लाइक यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज कॉन्टिनेंट का डेटा भी तुम्हें मिल जाएगा, तो दैट्स अ गुड साइट। देन मॉडर्न इंटेलिजेंस, आई ऑल्सो प्रेफर दिस, तो आई विल बी टेकिंग दिस नंबर। बस हम जहाँ से भी नंबर लेंगे हमें ये देखना है कि उनका, हमें जो जो कॉन्टिनेंट, जो जो ज्योग्राफी का चाहिए वो भी होना चाहिए नंबर्स। लाइक इंडिया का हमें चाहिए, नॉर्थ अफ्रीका चाहिए, एंड यूरोप का नंबर्स। तो वी विल सर्च अबाउट दैट नंबर्स ऑल्सो। लेट्स सर्च इंडियन IT इंडस्ट्री मार्केट साइज मॉडर्न इंटेलिजेंस। If we search it, we will come here. So they've also uploaded market size of Indian IT industry. So, and we will name it North America. Yeah, and we will name Europe Columbus. Europe. ओके, सो मॉडर्न इंटेलिजेंस का हमें जो जो ज्योग्राफी का चाहिए, हमने वो नंबर्स निकाल लिए हैं। सो वी विल जस्ट copy paste these numbers. It is coming to $1.52 trillion. Global.
The street. It was for 2025. You convert to billions. Again, we have to convert in millions, so we will directly multiply it by 6. So this is in millions. And for 2030, they have given a number of $2.36 trillion. And CAGR of 9.26%. Now here if we ओके, सो हमने ईयरली डेटा मार्केट साइज का नंबर निकाल लिया है फॉर ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री. नाउ सेम वे हमें हर रीजन का करना है ऐसे. ओके, so I've just copy pasted all these numbers for the as same as like global IT industry for the Indian IT industry, North America and Europe. I took and then for the rest of the world numbers, I just take ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज में से मैंने इंडिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का माइनस कर दिया. सो वी विल ऑटोमेटिकली गेट rest of the world numbers. Same way for the year ending numbers. Now, for the हमें बीच के नंबर के लिए we will just estimate what is the CAGR. -1. So it is coming 13.42%. Just इस तरह हम इस नंबर को इसको आगे ऐड करके बढ़ा सकते हैं. एक सेकेंड. क्या हमें कंपनी का रेवेन्यू का नंबर मिल चुका है, हमने इंडस्ट्री का मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट निकाल लिया. नाउ अब हमें चाहिए कि वो कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हर इंडस्ट्री में. उसके लिए हमने कंपनी का रेवेन्यू नंबर्स पहले से निकाल लिया. बट द प्रॉब्लम इज कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो करोड़ में है, INR करोड़. एंड यहाँ पर हमने जो नंबर निकाला है वो मिलियन डॉलर्स में है. तो हमें कंपनी के नंबर्स को INR मिलियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हम इसको INR करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट द ईजियर पार्ट इज कि हम INR मिलियन में कन्वर्ट करके फिर हम उस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं. नो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें नीड होगी कि USD INR का रेट क्या था फॉर 2024 एंड 2025. एंड अगर हम फ्यूचर में भी लाइक फर्स्टली हम ये पार्ट करते हैं, तो इसके लिए वी कैन डायरेक्टली गो टू क्रोम एंड वी कैन सर्च इट लाइक एवरेज. सी इट इज कमिंग एवरेज USD INR रेट
during financial year 2025. ये मैं डेट वाइज नंबर दे रहे हैं बट वी नीड नंबर एक सेकेंड फॉर ड्यूरिंग 2025. लाइक अब हमें यहाँ पर जो नंबर्स मिल रहे हैं वो डेली डेटा के मिल रहे हैं. व्हाट वी कैन डू इज टेक एन एवरेज ऑफ ऑल द ईयर. मतलब जो भी डेट का नंबर्स आ रहे हैं सारे हमें थ्रू आउट द ईयर के लिए हमें सारे का एवरेज ले लें. या फिर एक ईजियर ऑप्शन है, अगर अगर टीसीएस यूएस में ट्रेड कर रही होती, अगर उसका बॉन्ड यूएस में होता तो फिर उनको फॉर्म 20F भी अपलोड करना पड़ता. तो वहाँ पर कंपनीज एवरेज यूएसडी आईएनआर रेट देते हैं फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. बट एज टीसीएस तो वहाँ पर लिस्टेड नहीं है, बट इन्फोसिस वहाँ पर लिस्टेड है. तो हम इन्फोसिस का भी यूएसडी आईएनआर का रेट ले सकते हैं, बिकॉज यूएसडी आईएनआर रेट तो सेम होगा फॉर ऑल द कंपनी फॉर दैट ईयर. So we will take Infosys from 20F 2025. यहाँ पर हमें दिया हुआ है एवरेज एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर यूएस डॉलर which is 84.56 for 2025, and for 2024 it's 82.78. 82.78. नाउ हम इसके लिए हम एक नोट भी हर चीज़ पे लगा सकते हैं कि अगर हमें अगर हम पास्ट में फिर से कभी आए फ्यूचर में हमें कि देखने के लिए हमने ये नंबर्स कहाँ से लिए तो हम इजीली ट्रैक कर सकें. तो ये था पेज नंबर 71 पर ऑफ फॉर्म 20F ऑफ इंफोसिस. नाउ अब हम इसको आईएनआर मिलियन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सॉरी, यूएसटी मिलियन. वी विल डिवाइड इट बाय दिस एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू कन्वर्ट इट इनटू मिलियंस. Same way for the financial year 2025 divided by 84.56 into में 10. एंड ये नंबर को कांस्टेंट रखना है, सो लॉक कर देंगे. नाउ वी विल कम हियर
and take TCS CS revenue, which for 2025 it was India this much. Same way take for North America, Europe, and rest of the world. Okay, so I've wrote down all the numbers of the company for each continent, I mean each geography. तो अब हम क्या करेंगे कि लाइक इंडिया का रेवेन्यू कंपनी यहाँ से इंडिया से इतना जनरेट करते हैं 2609, एंड इंडियन आईटी मार्केट साइज टोटल 3703 है। तो टीसीएस का मार्केट शेयर कितना हो गया इंडियन मार्केट? इट इज ऑल टच पी, सो इट इज अराउंड 7% परसेंटेज टीसीएस। तो कंपनी 7% के अप्रॉक्स मार्केट शेयर है कंपनी का इन इंडियन आईटी मार्केट। सेम वे वी विल कैलकुलेट इट फॉर द अदर मार्केट्स एज वेल। Here it is coming 2.7%. It is 2% and the rest of the world is 0.7%. ओके, सो हमने परसेंटेज शेयर निकाल लिया है टीसीएस का फॉर ऑल द ज्योग्राफी। नाउ हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेंगे कि एज वी नो कि टीसीएस एक बड़ी कंपनी है एंड फॉर इट टू ग्रो, तो हम ये अब एक तरह से एक स्टेबल कंपनी हो चुकी है दैट इट इज़ ग्रोइंग एट एन स्टेबल रेट। क्योंकि हमने अभी कोई इसका इक्विटी रिसर्च, आई मीन लाइक कॉन कॉल और बिजनेस मॉडल में नहीं पढ़ा है, तो हमें इस कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है। बट वॉट वी कैन अज्यूम सेफली दैट एज इट इज़ अ बिग कंपनी एंड ये स्टेबल कंपनी है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में अपना मार्केट शेयर तो एटलीस्ट लूज नहीं करेगी। तो ये अपना मार्केट शेयर भी अगर मेंटेन करती है तो इट इज़ कमिंग 7% फॉर फ्यूचर ईयर्स। सेम वे फॉर ऑल द मार्केट्स। नो, अगर ये लाइक 2026 में 7% मेंटेन करती है एंड होल इंडिया आईटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज इतना होगा, इसमें से 7% टीसीएस ओन करते हैं, तो टीसीएस का रेवेन्यू फॉर दैट ईयर इतना होना चाहिए एंड वी विल ड्रैग इट फॉर फ्यूचर ईयर्स, सो इट इज कमिंग दिस। Now same way we will do it for North America continent, which is 2.7% of whole North American IT industry. Same way for Europe and others.
हमने अब ये कैलकुलेट कर लिया कि ज्योग्राफी वाइज कंपनी के रेवेन्यूज कितने होंगे. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग होल रेवेन्यू वी विल जस्ट ऐड दीज नंबर्स. INR, sorry, USD million. This was INR crore. We will just add all these numbers. That is, इंडिया से रेवेन्यू इतना था, देन नॉर्थ अमेरिका से 1512, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. And now we will drag it for future years. अगर हम देखें, सो इंडिया रेवेन्यू, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो हमने अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम बस हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि ये जो नंबर्स है वो यूएसडी मिलियन में है एंड कंपनी जो रिपोर्ट करती है वो आईएनआर करोड़ में है. तो हम इन नंबर्स को आईएनआर करोड़ में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर दिस, एज वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस यूजिंग एवरेज USD INR rate. So for 24 and 25 we already know it was 82.78. and now अब हम फ्यूचर ईयर्स का कहाँ से लें? For future years we will again go to Chrome and we will search average USD INR rate for 2026 to 2030. तो यहाँ पर एक साइट है जिन्होंने फॉरकास्ट दिया हुआ है. सो इन्होंने एक एवरेज प्राइस दिया हुआ है फॉर मंथली वाइज. लेट्स चेक अदर साइट्स आल्सो. Okay, what we can do is take the forecast for 2030. Let's take. So based on the long-term statistical projection, the average value of USD INR rate by 2030 is estimated to be around 102.3577. Now we will take this number यहाँ पर. ठीक है. And keep in mind to write notes of this as well. जहाँ से भी हम नंबर्स ले रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम ट्रेडर्स यूनियन. फ्यूचर में इट विल बी बेनिफिट यू टू कीप ट्रैक ऑफ दीज नंबर्स. तो हमने ये नंबर्स ले लिए हैं एंड हमारे पास गैप अगर देखोगे तो 5 years का है. व्हाट वी विल डू कि हम इसको टेक द CAGR, दिस डिवाइडेड बाई दिस नंबर इनटू में 1 divided by 5 minus 1 alt HP, और हम इसको लीनियरली ग्रो कर देंगे. तो हमारे फॉरकास्टेड नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पर. ना बस हमें अब इसको कन्वर्ट करना रहेगा. लाइक दीज नंबर्स and we will have to multiply it by 87.9 and divide by 10 to convert it into
INR crores. Alt HK H0 H9. So that's it. So this is how we forecast the revenue number of any company through the industry top-down approach. So that's it for the video, and फ्यूचर में आई विल बी अपलोडिंग मोर रिलेटेड टू कि हम कंपनी के रेवेन्यू को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं बाई बाइफर्केटिंग इट इनटू देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. बट उसके लिए हमें कंपनी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन दैट एज वेल. थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय.